Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning. Sir, how are you? I'm fine. How are you? Sir, I am also fine. आज तुम्हारी आवाज बेटा कुछ हल्की लग रही है, which is a very good thing. Sir, let's start from third question. To start from third question. Have we completed second question, all of you? Yes, sir. We did complete it. Yes, sir. Sir, yesterday we Yes, have a sir. combined class. Yes, we had a combined class yesterday. Sir, you may explain to them the Huh? Yes, sir. Sorry. sir, Today you we have to do third explain to be about properties of parallel. Because B section had not studied the properties of parallel lines. So I was explaining, and it was a revision class for you all. And Dr. Gangwar was speaking very less in that period. ओके सो बेटा ये क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया था, हमने x की वैल्यू निकाल ली थी, उसके बाद एंगल 1 एंड एंगल 2 भी फाइंड कर लिए थे। आई थिंक एंगल 3 एंगल 8 निकाला था हमने। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have ना find it. बेटा एंगल 3 Oh, की yes, वैल्यू sir. Yes, sir. कितनी, एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? Sir, Sir, 75 75 degree. degree. So 75 degree. Very good. And what about angle 8? So 105 Angle 8 degree. equals to 105 degree. Very good. As angle 2 is 105 degree, angle 8 equals angle 2. The reason is they are alternate exterior angles. That is why. Very good. So let's Sir, start third with. is from linear equations. अच्छा अच्छा question. Yes, Sir, I have done third and fourth question also. very good. Size 14A. Question number 3. Two parallel lines L and M cut a transversal T. If the interior angles of the same side of T be this and this. अच्छा अच्छा अच्छा. Find the measure of each of these angles. Very good question. Okay, so Sir, let's draw linear the figure. equations. अरे नहीं, linear equations. Yes, a little concept will be used of linear equations later in the Sir, question. Yes, sir. sir, linear equation only. Sir, 2x minus 8. तो ये 2x minus 8 खाली linear equation में होता है बेटा, और कहीं नहीं हो सकता. Sir, we have to draw diagram. So in each question, so we have to draw the figure. Yes, beta. Unfortunately, in almost all the questions, we have to draw the figure. Okay, sir. Sir, this is integers also. चलिए, so this is the figure. There is a transversal T. ये yellow color वाली जो line है, this is the transversal T. And there are two parallel lines L and M. Parallel lines को नाम दिया है L and M. ठीक है? I have given the name, as you can see.
Now the measures of, ध्यान से सुनिए क्या given है. Without the figure they have given the question. इन लोगों ने क्वेश्चन बोल दिया बिना फिगर के, लेकिन हम लोग जब करेंगे तो हम बिना फिगर के नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है? तो इट इज वेरी Excuse me, इंपॉर्टेंट sir. टू ड्रॉ द, यस Sir, in third question it's different. है बेटा. Sir, in third question there is no figure. नो फिगर, फिगर बेटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से. दक्ष, in this question, third question, the figure is not given. You have to draw the figure yourself. ठीक है बेटा. दक्ष, हमको फिगर अपने आप Sir, बनाना है. fourth one is different. फोर्थ अलग है, थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ मैं. थर्ड वाले क्वेश्चन में Sir, फिगर I हमको think खुद third बना. and fourth is combined. अरे नहीं कंबाइंड यार, सुनते नहीं हो तुम बात को, अपना दिमाग ज्यादा चलाते हो. सो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, मेरी बात सुनिए. इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल टी बी दिस एंड दिस. ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो दोनों इंटीरियर एंगल है, समझ में आई आपको? यानी कि ये वाला ग्रीन कलर से देखिए मैंने एंगल्स मार्क करे. ट्रांसवर्सल Yes, की sir. सेम साइड में जो दोनों Excuse me, इंटीरियर sir. एंगल्स हैं, अभी वेट करो 10 गंगवार, और ध्यान से सुनिए जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में कहोगे नहीं समझ में आया. ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपको गिवन है. कितने कितने गिवन है? एक एंगल आपको दिया हुआ है 2x माइनस 8, 2x माइनस 8, एंड दूसरा वाला गिवन है 3x माइनस 7. ठीक है. So now we have to find all the angles. ये नहीं, ये दोनों एंगल निकालने बस, और कोई नहीं निकालना है. We have to only find this angle and this angle. ठीक है, यही दोनों एंगल फाइंड करने हैं. इजी है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है. ये पैरेलल लाइंस हैं बिकॉज नाउ दीज आर पैरेलल लाइंस. तो ये दोनों एंगल जो मैंने मार्क करे हैं, ये दोनों एंगल किस टाइप के एंगल्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल लग रही है आपको? व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? इन एंगल्स को क्या बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं ऐसे एंगल्स को बेटा? Sir, linear pair of angles. It's a linear pair of So- angles. Co-interior. Co-interior angles is the right Co-interior. term. These Co-interior. are, yes, these are co-interior angles. को-इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होते हैं इंटीरियर रीजन में. देखिए आप को-इंटीरियर एंगल मैंने लिखवाए हैं, देखिए नोट करवाए हैं, और देखिए कौन सा पेयर है को-इंटीरियर एंगल्स के. जस्ट सी इट इन योर, जो मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने मार्क करवाए थे. Sir, Note how Yes, sir. linear pair? लीनियर पेयर नहीं है बेटा, मैंने कब बोला लीनियर पेयर, मैं तो को-इंटीरियर बोल रहा हूँ. ओके, सो दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स. तो क्या यूज करेंगे हम? 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 Sir, this we equals have to to write in copy. 180 degrees. Yes, yes. And reason क्या लिखेंगे? These are co-interior angle. Sir, y plus. Sir, L. What is the property of co-interior angles? The sum of the co-interior angles is equal to 180 Angle degrees. is equal to 180 180. degrees. Yes, the sum of the angles is equal to 180 degrees. इसीलिए मैंने दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 के इक्वल पुट कर दिया. So 2x minus 8 plus 3x minus 7 equals to 180 degrees. 2x plus 3x हो गए 5x, minus 8 minus 7 हो गया minus 15 equals to 180 degrees. 180 degrees. 5x equal to 180 plus 15. तो 5x. बेटा इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं? पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन पे अटेंशन. एल्जेब्रिक, sir. सुनो मेरी बात सुनो. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने सीखा था हाउ टू ऐड टू डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. 2x माइनस 8 और 3x माइनस 7 को ऐड जब आप करेंगे तो लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे. 2x प्लस 3x कितने हो गए? 5x.
सीखा था आपने। एंड -8 -7 इंटीजर्स में सीखा था, -15 हो जाएगा। अब ये -15 ये लीनियर इक्वेशंस का पार्ट है। -15 को जब आप RHS में ले जाएंगे तो ये +15 बन जाएगा, बन गया 195 हो गया ये। एंड 5 यहाँ से यहाँ डिवाइड में चला जाएगा बिकॉज x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाएगा। So you get x equal to, what is the value of x? X equal to 39 degrees. Sir, X की please value wait. I 39, am noting down. x की वैल्यू 39 आ गई। नाउ यू फाइंड बोथ द एंगल्स, दोनों एंगल्स की वैल्यू भी निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे? 2x minus 8, just put the value of x, 2 into 39 minus 8, 2 into 39 हो गया बेटा 78 minus 8 बन गया 70 degrees। एंड दूसरा वाला 3x minus 7, 3x minus 7 हो गया 117 minus 7, 3 into 39 minus 7, that means 117 minus 7, which is equals to 110 degrees. So these are the two angles, 70 and 110. Okay. Yes, Sir, Divyanshi. please wait. So I'm so not able to understand so the division part. So why did we say divided? Why are we dividing 195 by 5? Sir, can I tell? Yes, Are you asking this? Beta, when there is when Yes, there is a sir. linear equation, when we are solving a linear equation, see this. Sir, I also तो do सपोज this side. x के साथ मान लीजिए कोई भी चीज 5 ऐड में लिखा हुआ है और RHS में मान लीजिए 20 लिखा है, तो ये जब नंबर प्लस में है RHS में जाएगा, एडिशन अगर हो रहा है तो RHS में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, उल्टा होता है। ऐसी कोई चीज अगर यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, फॉर एग्जांपल 7x इक्वल टू 21 है, तो ये 7 और x मल्टीप्लाई होते हैं। जब आप 7 को RHS में लेके जाएंगे तो डिवाइड में ले जाएंगे, उल्टा काम करते हैं, ठीक है। And sir, in minus. Same we Okay, have sir. done here also. 5x equal to 195 था, 5 को डिवाइड में ले गए, and 195 when you divide it by 5 you will get 39. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Sir, I am also do this side. Sir, Yes. sir, if the linear equation is given in minus, so we will plus. Yes. Yes. Very good. Sir, actually, these types of sum we have not done in 6th class. 2x minus 8 plus 3x. Sir, Yes. sir, we have not done these sums in 6th class. 2x minus 8 plus 3x. कोई बात नहीं, मत कर लो, 7th में कर लो। Done, everyone? Yes, sir. Sir. Done. Yes, sir. Sir, excuse me. Yes, sir. Sir, in the 5th question, we have to find a value of x and y only. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, in the 5th question, we have to find the value of x and y only. Yes. Sir, Yes. hello. Yes. Yes. Have some patience, sir. Hello. बोलने का मौका दोगे या नहीं? Question number 4. Yeah. In the given figure, L and L is parallel to M. Again, two parallel lines are there. And now in this case, there are two transversals. एक Excuse नहीं me, दो। जी सर बताइए। एक्सक्यूज मी सर बताइए, सर आप बताइए पहले। sir, in this question, the m value is given 65 degree, and sir, s value is given 50 degree.
अरे एम और एस की वैल्यू नहीं है वो, बेटा मुझे बोलने दोगे तभी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तुम मुझे बोलने का चांस नहीं देते हो, तुम पहले खुद पढ़ाने लगते हो। ऐसा करो दक्ष गंगवार तुम पढ़ा लो यहाँ पर आकर के। बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है दक्ष। तुम मुझे बोलने का चांस दोगे, क्वेश्चन समझाने का चांस दोगे, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम पहले से ही 4 क्वेश्चन कर लेते हो। देखिए भी, so now in this question there are two parallel lines like in all the questions। सारे क्वेश्चंस में 2 पैरेलल लाइंस हमने देखी, यहाँ पर भी 2 पैरेलल लाइंस हैं। But now in this question there are 2 transversals। एक नहीं 2 ट्रांसवर्सल है। This is the first transversal and second transversal। Let me draw it। This is the second transversal। So 2 parallel lines and 2 transversals। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी। देखिए ये क्या है, S और T। S इज द नेम ऑफ दिस ट्रांसवर्सल, ये इस ट्रांसवर्सल का नाम है S। T is the name of second transversal। L is the name of first parallel line and M is the name of second parallel line। क्या 2 पैरेलल लाइंस के साथ 2 ट्रांसवर्सल हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। Yes, sir. 2 क्या Okay, 3 sir. भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी आप ट्रांसवर्सल ड्रॉ Sir, कर 10? सकते हैं। 10 भी हो सकते Sir, हैं। हाँ अब तुम कहोगे 1000। देखो बेटा, तो now this the value of this angle is given 50 degrees। This is 65 degrees। ये आपको x गिवन है एंड ये वाला एंगल आपको y गिवन है। ठीक है, sir, what is the work of 65 and 50? हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए Sir, फर्स्ट ऑफ ऑल x और 50 डिग्री। अभी आप जो the व्हाइट वाली corresponding. ट्रांसवर्सल है, तो अभी जस्ट अ मिनट बेटा ये बताता हूँ। सिर्फ अभी आप व्हाइट वाली ट्रांसवर्सल को देखिए, येलो वाली ट्रांसवर्सल को भूल जाइए कि यहाँ पर है। एक तरीके से यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बना के दे दिए और कुछ नहीं है। समझ में आई मेरी बात? है मतलब दोनों जगह काम सेम करना है हमको, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अलग अलग बना के दे दिया आपको। कोई Sir, प्रॉब्लम नहीं है, S वेरी इजी। value is 50 degree. Okay, sir. महाराज चुप रहो, अभी बताया था तुम। मैं दक्ष गंगवार तुम्हें मीटिंग से बाहर भगा दूंगा अभी। कैमरा ऑन करो। कैमरा अगर तुम्हारा ऑफ हुआ एक बार भी दक्ष, तो मीटिंग से तुम्हें निकाल दूंगा मैं अभी। अभी तुमने सुना था मैंने क्या बोला था, एस क्या है? Sir, मैंने name क्या of the बोला था? transverse. देखो दिव्यांशी को कैसे पता है बताइए, दिव्यांशी को कैसे पता है एस? हाँ जी दक्ष गंगवार, आप सुनते नहीं है, बाद में फिर उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हो। एस इज द नेम ऑफ ट्रांसवर्सल। एस की वैल्यू 50 कहाँ से हो गई? मैं बता चुका हूँ पहले, एस इज द नेम ऑफ ट्रांसवर्सल, टी इज द नेम ऑफ सेकंड ट्रांसवर्सल, एल इज द नेम ऑफ फर्स्ट पैरेलल लाइन, एम इज द नेम ऑफ सेकंड पैरेलल लाइन।
सो नाउ अभी आप येलो वाली ट्रांसवर्सल को भूल जाइए, मान लीजिए कि है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ आप व्हाइट वाली ट्रांसवर्सल और दोनों ग्रीन कलर की पैरेलल लाइंस को ध्यान से देखिए। मुझे ये वाला एंगल 50 डिग्री गिवन है, एक्स फाइंड करना है, बस इतना सोचिए आप। कैसे So निकालेंगे? corresponding angles. नहीं बेटा, दीज आर नॉट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होते हैं, है ना, होते हैं। सो एक्स और 50 तो ये दोनों अलग अलग साइड में है, सो दे आर नॉट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या और कोई रिलेशन हो सकता है एक्स और 50 में? क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है? क्या ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है? क्या ये So को interior. इंटीरियर है? क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? अभी अभी एक बच्चे ने बोला ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये ऑल्टरनेट तो हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स तो हैं। कैसे मतलब? वैसे सिर्फ ऑल्टरनेट वर्ड का अगर हम यूज करते हैं तो चलो ठीक बात है। कैसे? एक्स जो है वो राइट साइड में है ट्रांसवर्सल के, 50 जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो दीज आर ऑल्टरनेट बट दे आर नॉट ऑल्टरनेट इंटीरियर, नहीं हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि So 50 जो है वो co-interior angle. 50 जो है वो इंटीरियर में है ही नहीं, 50 एक्सटीरियर पोर्शन में है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हम नहीं यूज कर सकते। को इंटीरियर वो भी यूज So नहीं कर co-interior सकते, angle. दे आर नॉट इवन को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर तो कहीं से भी नहीं है, बिकॉज Linear pair. ना तो ये दोनों एंगल सेम साइड में है ट्रांसवर्सल की, और ना ही ये दोनों एंगल इंटीरियर में है, क्योंकि 50 जो है वो आपका एक्सटीरियर में आ रहा है। सो ये कुछ भी नहीं है, ना ऑल्टरनेट इंटीरियर ना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, ना ही ये एंगल्स आपके को इंटीरियर है ना कोरस्पॉन्डिंग है। अब क्या होगा? अब एक्स कैसे निकलेगा? अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से ये वाला एंगल ए लगा लेते हैं, ठीक है, इस एंगल को ए लगा लेते हैं। अब ए और 50 ये दोनों एंगल हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों हो गए करस्पॉन्डिंग? बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम साइड में होते हैं ट्रांसवर्सल की। एंड Like so एक transversal. एंगल एक एंगल एक्सटीरियर में होता है, दूसरा इंटीरियर में होता है। तो एंगल ए एंड 50 ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग। तो हम x को निकालने के लिए पहले एंगल a निकालेंगे, उसके बाद x निकालेंगे। आइए देखिए कैसे। a प्लस 50 डिग्रीज, सॉरी a प्लस 50 नहीं, आई एम सॉरी, बिकॉज a एंड 50 ये दोनों एंगल्स आपके करस्पॉन्डिंग है। तो a इक्वल टू 50 डिग्रीज, रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया बेटा करस्पॉन्डिंग। तो a की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब क्या मैं x निकाल सकता हूँ? क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x? यस, a प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैन यू टेल मी द रीजन a प्लस x 180 क्यों हुआ? आपने देखा है, ध्यान से देखिए a और x को, फिगर में देखिए a और x की पोजीशन को। Why the sum of a and x is 180 मैंने क्यों लगाया है? बिकॉज vertical opposite angle. अरे नहीं बेटा, दे आर लीनियर पेयर Linear ऑफ, pair. Linear pair. यस लीनियर पेयर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर होते हैं। एक ही लाइन Yes, सेगमेंट के सेम साइड में दो एंगल अगर होते हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं। एक ही लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर दो एंगल जो होते हैं, सेम वर्टेक्स पर हैं दोनों एंगल, अलग अलग वर्टेक्स Yes. पर नहीं है ना, सेम वर्टेक्स पे दो एंगल है, सेम साइड में है एक लाइन के, तो दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मैं लिख देता हूँ एलपी, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। a की वैल्यू 50 डिग्री में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, a प्लस एक्स इक्वल टू 180, देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 माइनस 50, x की वैल्यू आ गई बेटा 130 डिग्रीज। इज इट क्लियर? x इक्वल टू 130 डिग्रीज। Yes, sir, it's clear. so x is 130. ये हाफ क्वेश्चन हो गया आपका। अब Sir, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आप लोगों को मैं कहूंगा sir, करना, answer
Excuse me, sir. Sir, 115 degree. Yes. Sir, the second Sir. part 115 ठीक है degree बेटा, answer. सही है, सही है। हाँ जी, दक्ष गंगवार Excuse बोलो। me. हाँ जल्दी बोलो। Sir, in the second part, sir, we have to write in the A degree, and we can solve by the sum from the same method. हाँ, अब इस वाले एंगल को ए नहीं बी लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, बी और 65 को देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। वाई के जो बगल वाला एंगल है उसको बी लगा दिया, बी और 65, एंगल बी एंड 65 डिग्री, ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, एंगल बी की वैल्यू 65 आ गई। फिर y प्लस बी इक्वल टू 65 लिखेंगे। आप बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, आप लोगों को करना है, आई एम नॉट गोइंग टू डू। निकालिए। Y plus 65 equals to 180. The answer is 115 degree. यस। Sir, we write B plus Y equals 180 degree. यस, पहले एंगल बी निकालिए कितना है और रीजन बताइए। y एंगल b is equal to 65. The reason is corresponding angles. Yes, sir. Sir, my answer is correct. Yes, your answer is correct. Okay, sir. Done. Sir, done. Sir, my answer is 115 degree. So same. Sir, excuse me. Yes. Sir, this is linear pair. एक सेकंड वेट करिए। आदित्य पाठक, आपसे बात करनी थी मुझे। बेटा, आप आजकल कहाँ पर हैं? घर पे हैं अपने? कहाँ हैं सर क्या? आप आजकल? अपने घर पर हैं, कहीं और गए हुए हैं? सर घर पे ही हैं। बेटा, आपने रीटेस्ट नहीं दिए। रीटेस्ट आपकी वजह से कंडक्ट हुए थे। व्हाई हैव यू नॉट गिवन द रीटेस्ट? Sir, the 6th grade, sir, on 6th grade, sir, I was in Lucknow. एंड ऑन 7th और 9th और 10th को क्या हुआ? 7th 9th और 10th को जो रीटेस्ट थे वो आपने क्यों नहीं दी? सर क्योंकि सर वो तो मैंने दे दिए थे। संस्कृत, फ्रेंच, रीजनिंग, इंग्लिश, सोशल, साइंस, हिंदी, ये सब आप पहले दे चुके हैं। Yes, sir, my Sanskrit marks is बेटा आशिका, एक मिनट, आप एक मिनट शांत रहिए। आदित्य से बात करने दो मुझे। हाँ जी आदित्य बेटा, आपने मुझे बताया था कि आपके कुछ टेस्ट मिस हुए हैं। जी, yes, sir. उनमें से मैं आपको बताता हूँ कौन से टेस्ट मिस हुए थे आपके। आपने बताया था जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, संस्कृत, मैथ्स, ये वाले टेस्ट आपके मिस हुए। तो आपने रिमेनिंग वाले भी तो नहीं दिए। Why have you not given? सर मैथ्स तो मैंने अभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बेटा? सर आई डोंट वांट माय पेपर। आपको एक मैसेज में ऑलमोस्ट मैंने इतनी बार मैसेज किया। मैंने 5th अगस्त को भी मैसेज किया था आपको, फिर मैंने 6th अगस्त को भी मैसेज किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया मेरे को। रिगार्डिंग द यूटीज के मैसेजेस मैंने आपको किए थे, मतलब रीटेस्ट के लिए, तो आपने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया उन मैसेजेस का। आपने
देखिए मैसेज ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है दैट यू हैव टू सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू द टीचर फॉर योर रीटेस्ट। आपको भेजना था, कितने बजे भेजना है आपको? डेली 12:40 पे एक मैसेज भेजना है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। शेड्यूल भी मैंने आपको मैसेज करा है, देखिए। 6 अगस्त को आपका जीके कंप्यूटर का होना था, 7 अगस्त को संस्कृत एंड फ्रेंच का होना था, संस्कृत फ्रेंच एंड रीजनिंग का। 9 अगस्त को आपका इंग्लिश एंड सोशल्स का होना था। 10 अगस्त को साइंस एंड हिंदी का होना था। 11 अगस्त को मैथ्स का है। आज है 11 अगस्त, आज मैथ्स का रीटेस्ट होना है आपका। यस सर। आपको मैंने शेड्यूल भी मैसेज किया था, मैंने ये सारे मैसेज भी आपको फॉरवर्ड किए थे कि आपको 12:40 पे टीचर को एक मैसेज करना है, क्लास टीचर को यानी कि मेरे को, रिगार्डिंग द रीटेस्ट। आपने वो भी कोई मैसेजेस नहीं किए। व्हाई हैव यू नॉट डन दिस? व्हाई आर यू नॉट रीडिंग द मैसेजेस? आपने मैसेजेस मतलब रीड तो करे हैं बट आपने ध्यान ही नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और क्या, ये जो रीटेस्ट होंगे इनमें आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। आज मैथ्स का होना है। विल यू गिव द मैथ्स रीटेस्ट और नॉट? यस सर। तो आप मेरे को 12:40 पे मैसेज करेंगे आप, ठीक है? ओके सर। ओके। टीचर्स दोबारा पेपर बना रहे हैं और आप रीटेस्ट नहीं दे रहे हैं। यू नो न्यू पेपर्स आर बीइंग मेड फॉर द रीटेस्ट। सारे टीचर रीटेस्ट के पेपर बना रहे हैं आपकी वजह से। चलिए। Sir, यस। sir, in the previous year, the new papers were not made when there was retest. तो न्यू पेपर बन रहे हैं, अब तो खुश हो गए तुम। Yes, sir. Sir, I have a doubt. हाँ जी बताइए। Sir, I write b plus y equals 180 degrees, so I will write linear pair of angles. Sir, I have done. Yes, the reason will be linear pair of angles. Okay, sir. So my answer is correct and my method is also correct. Let's do the next one. Very good. Kunjal has sent the answer in the chat box. चलिए question number 5. All of you please draw the figure for question 5. Question 5 का फिगर बनाइए। In this question also we have to find the value of x and y. And sir, the values are also given on p and Sir, I have done that one also. sir, this is fine. So this is the figure given in the question. Question number 5. These are parallel lines. Draw the figure. Have you all drawn the figure? Yes, sir. बेटा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Sir, बहुत इजी है। यस। yes, sir. Sir, it is very easy. Sir, I'm not able to understand this question. नो प्रॉब्लम, नो Yes, sir. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम Very बेटा, easy. मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं है। Sir, what is the value of angle A, B, and E?
एंगल सपोज सॉरी आपको x फाइंड करना है, ऑल ऑफ यू x फाइंड करना है। अब एंगल 65 डिग्री वाले को देखिए एंड x को देखिए। मैंने आपको बताया था व्हेन देयर आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी हैं। ये वाली जो लाइन है डी लाइन दिख रही है आपको, डी पॉइंट से ई पॉइंट तक जो लाइन जा रही है, डी एंड बीसी को देखिए, नीचे देखिए बीसी लाइन को। तो डीई एंड बीसी आर पैरेलल लाइंस दिखाई देगा आपको। एंड Yes, sir. ए बी जो है वो यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। ए बी को मैं ट्रांसवर्सल क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन ए बी जो है ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है ना, डी को भी इंटरसेक्ट कर रही है एंड बीसी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, हमारा राइट। और ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ए बी इज द ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये वाला एंगल x और ये 65, ये हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद है आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइन है जैसे ऐसे करके, और ये वाले एंगल्स जो होते हैं दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपने पढ़ा था। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है।